Good afternoon, sir. Yes, good afternoon. I have one query for you all. You people belong to group ME 123. So are you people having any trouble in labs or is everything running fine? You people are having your computer labs on regular time, right? Yes, Yes, sir. sir. Yes, Yes. sir. Are you people facing any difficulty in that or are you able to solve those questions? So there are no issues, I guess. Okay. So, So I so had a yeah, doubt. yes, Sir, yes, can you you can please ask. explain the use of double greater than operand? Double greater than operand. So how are you saying? What should I write here? So like it was a question in the tutorial thing. Yeah. Can Actually, can you tell the yeah, write a question? program. Yeah, 1 second, please. Yeah. It was write a program to shift left and shift right operators. Ask the application of this operator to your lab instructor. So were you told about this or not? No, not yet. Okay. So did you people ask your lab instructor or you have not even asked and you were trying it on your end? So I had actually joined the class late. I didn't get the Okay. time. So you were not sure that if it has been covered or not. Okay. So I will quickly discuss that. So left shift operator and right shift operator are the two operators that directly work on the number at bitwise level. So let's say I have a number, maybe 5. So 5 can be written as 101. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Okay. So if I say I want to do left shift of 5 by 1, 5 left shift 1, I want to do this. Can anyone tell me what will be the output? So if I write this statement, let's say I write here printf uh, percent %d and I write here 5 left shift 1. So what will happen? Any idea? I suppose you have no idea. So I will give you the detail that how it works. So when we say that we are shifting 1 bit, it means we are working on bit level. So let's say 5 is written as this. But then if I shift it by 1, it will become 1010. So this 101, they will all shift by 1 digit and the empty space will be filled by 0. Okay, so 101 left shift 1 will give me the output of 1010, which is equal to 10. This 5 has been converted to 10. So the output will be 10 on this side. Are you able to understand that what I'm trying to say here? Yes, sir. नहीं Yes, आया sir. सर, सुनो बता दो सुनो दोबारा। ध्यान से सुनो। अब अगर मैंने 101 लिखा, मैंने बोला इसको एक बिट से लेफ्ट शिफ्ट कर दो, मतलब मुझे एक एक खिसकाना है लेफ्ट हैंड साइड पे। सो दिस विल बी शिफ्टेड लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। तो ये 101 ऐसे आ जाएगा और एक यहाँ पे जगह खाली रह जाएगी इसके नीचे। यस और नो? यस सर। तो इसको खाली जगह को वी विल फिल बाय 0। दिस इज ए रूल। ओके, एंड इफ आई डू दिस नाउ, 101 मेरे को पता था इज इक्वल टू 5। 1010 क्या होता है? दिस कैन बी डिकोडेड बाय मल्टीप्लाइंग इट विद द वेट्स आर 1 2 4 एंड 8। सो 8 + 2 = 10। Yes or no? यस सर। So that's why now my 5 has become 10 if I left shift 5 by 1. अगर मैंने 5 को लेफ्ट शिफ्ट 1 किया, आउटपुट विल बी 10। समझ आ गया हुआ क्या है? यस कि उसको अपना वो डेसिमल में बाइनरी में चेंज कर दिया 1015 को, फिर वो आपने उसको जो लेफ्ट शिफ्ट किया वो 0 बस वहां पे करा हाँ, आपने। सिंपल है यार, देखो बहुत आसान है, टेंशन नहीं लेनी। इसको बस समझो कि लेफ्ट शिफ्ट का मतलब है कि हमें खिसकाना है लेफ्ट हैंड साइड पे मेरे बिट्स को। अगर मेरा सपोज नंबर है 1 1, मतलब ये 3 है, ठीक है, 1 2, 1 + 2 = 3। सो इफ आई गिव द इनपुट ऑफ 1 1 एंड आई लेफ्ट शिफ्ट बाय 2, ठीक है, अगर मेरा ये क्वेश्चन है,
कि ये जो मेरा नंबर है, ऐसे नहीं आएगा वैसे, क्वेश्चन आपको ये आएगा, लेट्स से वी डू दिस 3 लेफ्ट शिफ्ट 2. So if I do the left shift of 3 by 2 places in the binary, this 1 1 will be shifted by 2 places, it will become 1 1 0 0. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. So this 3 will become 12. यहाँ से एक छोटी सी चीज समझ में आ रही है कि अगर मैं इसको जनरलाइज करूं तो m लेफ्ट शिफ्ट n का मतलब है m मल्टीप्लाई 2 रेस्ट पर n. इसको देखते हैं ये मैंने क्यों लिखा है. सो मैंने बोला 3 को 2 से शिफ्ट किया, 3 को 2 से शिफ्ट किया और 12 बना दिया. तो इट मीन्स 3 इंटू 2 टू द पावर 2 मतलब 3 इंटू 4 इक्वल टू 12. ये फॉर्मूला सही है. हाँ जी. Similarly, if I say, let's say 7 left shift by 4, तो मेरे फॉर्मूला के हिसाब से इट विल बी 7 इंटू 2 रेज़ पावर 4 मतलब 16 इंटू 7. 16 7 सर कितना होता है? 112, राइट? 16 इंटू 7 112 होता है ना? यस सर, Yes, 112. sir. हाँ. अब देखो ये 112 कैसे आया वो देखते हैं. 7 क्या होता है? 111. यस और नो? Yes, sir. Left Yes, left shift by 4 it will become 111 0 0 0 0. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. तो अगर मैं इसको डिकोड करूं, 21 पे बोलना. अगर मैं इसको डिकोड करूं with its weights, so can I say that this is 32, this is 64. So adding all these numbers, 64 plus 32 plus 16. So if I say that I am doing this thing, it means that I am multiplying my 7 by 2 raised power 4. This is the shortcut. अदरवाइज आप उसको पूरा सॉल्व करोगे 1 1 1 लेफ्ट शिफ्ट 4 ऐसे लिखोगे, फिर उसको ऐसे पूरा लिखोगे, फिर उसको डिकोड करोगे, तो करते कराते काफी टाइम निकल जाएगा इफ यू आर वर्किंग इन ए कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट. तो दैट्स सर व्हाई मतलब कि जितने 1 होते हैं एक साथ उन सभी को खिसकाना होता है. अगर ऐसा हो गया 101 तो उस केस में क्या होगा? तो उस केस में वो शिफ्ट होके बन जाएगा लेफ्ट शिफ्ट अगर मैं 2 करूंगा तो वो 2 प्लेसेस शिफ्ट हो जाएगा ना लेफ्ट पे, तो यहाँ पे 2 खाली हो जाएंगे, तो इनको 0 कर देंगे. 101 एज इट इज आ जाएगा. ओके. ठीक मतलब है. स्टार्ट भी एंड से 1 भी एंड से वो उठा के सारा मतलब अरे बाहर यार ले जाना. कॉपी पेस्ट करना है बस. हाँ ठीक जी, है. ठीक और है. जितना ये लिखा हुआ है उतने 0 डाल दो राइट हैंड साइड पे. तो राइट शिफ्ट में क्या होगा था? क्या कह रहे हो? राइट शिफ्ट में क्या होगा? अब देखो हमने लेफ्ट शिफ्ट कर लिया. लेफ्ट शिफ्ट में आई टोल्ड दैट इफ आई डू m लेफ्ट शिफ्ट n इट मींस m into 2 to the power n. नाउ इफ आई डू राइट शिफ्ट, सेम वैसे मुझे राइट शिफ्ट पे मतलब राइट को जाना है, एंड दैट विल बी m डिवाइड बाय 2 रेज़ पर n. अभी प्रूव करता हूँ. लेट्स से माय नंबर इज 7. 7 को मैंने राइट शिफ्ट किया 1 से, तो क्या ये मेरा 11 बन जाएगा? एंड दिस विल, so if I move 1 bit to the right hand side, it means this one will be discarded. ये वाला खत्म हो जाएगा, ये दोनों आ जाएंगे और पीछे एक 0 आ जाएगा. यस और नो? खत्म कैसे सर? राइट शिफ्ट का मतलब ही ये है कि उसको जगह नहीं मिलेगी. अब अगर राइट शिफ्ट करेगा तो वो उसके जगह नहीं ले पाएगा ना नीचे. जैसे आप कर रहे थे, इसको लेफ्ट शिफ्ट कर रहे थे, तो वो एक शिफ्ट हो रहा था और एक जगह बना रहा था यहाँ पे. यस और नो? हाँ सर. यस सर. सिमिलरली अगर मैं राइट शिफ्ट 1 करूंगा तो सारे जने एक शिफ्ट हो जाएंगे, राइट? ये जो एंड वाला था ये सेकंड नंबर पे आ जाएगा, ये वाला सेकंड वाला फर्स्ट पे आ जाएगा, पीछे अच्छा, इसमें खाली. जगह खत्म हो जाएगी मतलब. हाँ, तो ये जगह ही खत्म होगी. ये वाला तो हमने काउंट ही नहीं करना, रखना तो 3 का ही है. ठीक Yes, ठीक sir. है. ठीक है. ओके सर. मैं एक वो डिलीट हो जाएगा. यस, एक डिलीट हो जाएगा उसमें से. सो इट मींस दैट 111 राइट शिफ्ट 1 से मुझे आंसर मिल रहा है 011. ये 7 था, ये मिला 3, तो 7 डिवाइड बाय 2 हम सबको पता है 3.5 होता है, बट इंटीजर्स में 0.5 उड़ जाएगा, 3 रह जाएगा. तो दैट्स व्हाई if I write 7 right shift 1, I can say I am dividing 7 by 2 raised power 1. 7 by 2 equal to 3. समझ आ गया राइट शिफ्ट लेफ्ट शिफ्ट दोनों? हाँ जी सर. यस. Okay. एक्सपीरियंस सर. हाँ जी, क्या कह रहे हो आप?
सर अगर जैसे 110 है, 110 उसमें लेफ्ट शिफ्ट 0 करें हम। 110 है और उसको लेफ्ट शिफ्ट 0 करें। सर तो फिर उसके बाद एट द एंड 0 ही आएगा ना बाद में भी, जब देखो खाली स्पेस। देखो, लेफ्ट शिफ्ट 0 का मतलब है कि आप उसको शिफ्ट ही नहीं कर रहे, यू आर नॉट शिफ्टिंग एनीथिंग, फिर वो तो सेम ही आ जाएगा सेम ही 110। आएगा। बिकॉज इफ यू सी द फॉर्मूला मैंने बोला था, it is m into 2 raised power n. It means that I am multiplying this 110 is 6 into 2 raised power 0, which is 6 into 1 only. तो number मेरा same ही आएगा, not being shifted. ओके सर। Okay. सर Yes. कल हमारी लैब में एक क्वेश्चन दिया था टू प्रिंट n नंबर्स ऑफ फिबोनाची सीरीज, वो क्या फिबोनाची सीरीज समझा दो। I will just give you the idea फिबोनाची होता क्या है, थोड़ा दिमाग खुद लगाना, ठीक है। फिबोनाची सीरीज होती है, फिर एक प्राइम नंबर वाला दिया था, वो तो हो गया था, ये रह गया था एक। देखो मैथमेटिकली जो फिबोनाची सीरीज है वो 0 से भी शुरू होती है और 1 से भी शुरू होती है। एंड जब भी फिबोनाची नंबर हमने कैलकुलेट करना है वो प्रीवियस 2 नंबर्स का सम होता है, ठीक है। आप कोई भी नंबर लिखोगे इसमें, it is always the sum of previous 2 numbers, dot dot dot. Similarly, you can write it as 1 1 2 3 5 8 dot dot dot, right? So if you have to print the first n numbers, you can either print based on this series or maybe this series, both will be correct. Okay. ओके सर। Okay, so we were at this stage, we were discussing this slide yesterday at the end of the lecture, life cycle of a C program, and we said that initially the code is preprocessed and then compiler helps us to convert it to assembly code, and finally the linker will convert it into exe file and loader will help us to execute. But in the following slides we will see now each step one by one. Okay, so preprocessor क्या करता है? प्रीप्रोसेसर में वी एक्चुअली कन्वर्ट क्या, जो हमारा ये stdio.h है, इसको हम इस फॉर्म में खोल के रख देते हैं। सो वट एवर stdio.h में मेरा प्री डिफाइंड था, जो भी प्री डिफाइंड था वो जाके एज इट इज हमारे कोड से पहले जाके लग जाता है। इन ए वे यू कैन इमेजिन कि मेरा stdio.h में ऐसे करके 100 स्टेटमेंट्स थे, ठीक है, 100 स्टेटमेंट्स थे। तो ये वाले 100 स्टेटमेंट्स मेरे इन 4 से पहले जाके चिपक जाएंगे एज इट इज, तो मेरा पूरा कोड बन जाएगा 104 लाइन का। और ये वाली चीज जो हो रही है ये .i एक्सटेंशन में हो रही है, एंड दिस इज व्हाट द प्रीप्रोसेसर इज। ओके, प्रीप्रोसेसर क्या कर रहा है, वो पीछे से हमारा कोड उठा रहा है stdio.h का, वट एवर द कोड इज वो एज इट इज हमारे कोड से पहले आके चिपक जाता है, एंड माई टोटल लेंथ ऑफ द कोड विल बिकम मोर देन द ओरिजिनल साइज, बट देन आई कैन ऑलवेज यूज printf वगैरह, ठीक है। जो भी मैं यूज करूंगा वो ऊपर से मंगवा लेगा जो पीछे के कोड में आया होगा। समझ में आ गया हुआ क्या प्रीप्रोसेसर में? वैसे डॉट आई की एक्सटेंशन का क्या यूज है इसमें? .i का हमारे लिए कोई यूज नहीं है, ये बैकएंड पे प्रीप्रोसेसर का काम है। ओके। Yeah. Okay, so now preprocessor remove the comments and include the header file in the source code and replace the macro name with the code. Okay, so these things are there. Moving to next slide now. Those people who will be joining late from next lecture, you people will not be allowed in class. Okay, next. सर मैक्रो नेम मींस? मैक्रो का मतलब है जो हम वो कर रहे थे, जैसे हैश डिफाइन वगैरह करते हैं। ओके ओके ठीक है, जो हम वो करते थे हैश डिफाइन पाई 3.14, तो इसमें ये मेरा पाई एक मैक्रो है, इसको हम मैक्रो बोल देते हैं। ठीक है जी। ओके, कमिंग टू दिस स्लाइड, सो इन दिस वी विल बी डिस्कसिंग कि कंपाइलर क्या कर रहा है। कंपाइलर इज कन्वर्टिंग माय कोड, जो मेरा ऐसे दिखने में था, इट इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू असेंबली कोड। ठीक है, एंड .s इज द एक्सटेंशन फाइल फॉर असेंबली कोड। if you people get a chance to work on 8085 or 8086 kind of programming language,
that is also one of the programming language, it is assembly language. उसमें हम .s से ही फाइल कोड सेव करते होते हैं, जैसे हम C में .c करते हैं, तो हमारे 8085 में 8086 में we save the file as .s file. So okay, now this whatever my initial code is, it is being converted into these commands. और हमने इसमें से एज इट इज कुछ भी मैंने डिस्कस नहीं करा हुआ कि पुश क्या होता है, मूव क्या होता है, बिकॉज दिस इज नॉट ए असेंबली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. I mean, this is a C programming language class. But then push का मतलब है कि we are having some value, let's say 5, we are pushing it into something. ठीक है, तो suppose I am pushing that value in the RAM, तो इसको push बोलते हैं कि उस चीज को वहां पे input करना. ठीक है, and move का मतलब you all know that we have to move this value right to left. ठीक है, सिमिलरली एंड में आप एंड गेट लगा लो, सब्ट्रैक्ट में सब्ट्रैक्ट कर लो. So there are few things written here. I will not go into the detail of it, but the basic logic, the basic thing that you need to get out of this slide is that compiler will convert my .i file, which is the expanded source code, into the .s file, which is the assembly code. So ये चीज याद रखने वाली है कि expanded source code को आप assembly code में convert करें using the compiler. Okay, moving to next slide. Now, once we have got the assembly code, which is .s file, if I convert that into object code, that is done by the assembler, and object code is actually the machine language only. So you can see that all of them are 0101 only. Full box is signifying that it is getting the value in .object file, and it is actually similar to machine code only. So now we can directly expect that computer can directly work on it, right? So because 01 instructions are easily understandable by the computer, and object code will be now sent to the linker to get the work done. Let's see what is linker doing. So linker का काम है to collect all the different libraries and all the codes जो हमारा main function है, या फिर कोई stdio.h है, जो भी बैकएंड पे अगर हम कुछ यूज कर रहे हैं, वो उन सबको कंबाइन करके लिंकर एक exe फाइल में कंबाइन कर देगा. सो ऑल ऑफ दैट लिंकर, one second, all of that obj file, so earlier it was .obj, right? So all of the multiple obj files will be combined, and it will be helping to make the exe file, which is a executable code, so that you can directly run this code. ठीक है सर, हर एक फंक्शन का अलग ओबीजी कोड बनता है, मतलब वो जो दिखा रहे थे 101 में. हाँ, क्योंकि ये है सिर्फ एक असेंबली कोड का. ठीक है, हो सकता है कि मल्टीपल आप प्रोग्राम इकट्ठे कंबाइन करके एक बड़ी एप्लीकेशन बना रहे हो, तो वो सिर्फ एक .s फाइल नहीं होगी, उसमें मल्टीपल obj फाइल्स होंगी. ठीक है, एंड बिकॉज ऑफ दैट वी आर कंबाइनिंग. उसके बाद मतलब उसको लिंक करके exe फाइल में कन्वर्ट. यस, लिंकर का काम है टू कन्वर्ट ऑल द obj फाइल्स into one single executable file. तभी वो zip बना हुआ है. तो ये zip फाइल की तरह आप इसको इमेजिन कर लो कि वो मल्टीपल चीजों को इकट्ठा करके एक जगह पे exe में बना रहा है. ओके, नाउ this is the final step, the loader क्या करता है? loader places these machine code object decks in memory ready for execution. देखो, जो भी हमारा कोड है, जो भी हमारी exe फाइल है, कोई भी आप वीडियो गेम खेलते हो, लेट्स से आप कोई भी गेम का नाम बोलो, आई एम अनेबल टू. GTA, चलो PUBG कर लो या GTA कर लो, व्हाटएवर गेम यू आर प्लेइंग, वो इन द एंड तो रैम लेती है ना. अगर रैम आपकी अच्छी नहीं है, सपोज आप 4 GB रख रहे हो और PUBG को शायद 8 GB चाहिए, आई एम नॉट श्योर, बट मे बी ज्यादा चाहिए, तो वो रन ही नहीं कर पाएगा. यस और नो? सही बोल रहे सर. हाँ, तो सिमिलरली अगर आप पीछे, जैसे हमारा पीछे कोड चलता आ रहा है sample.exe, जो मेरा कोड है, वो भी तो कहीं ना कहीं जाके रैम मांगेगा ना. तो ये वो वाला स्टेप है कि लोडर के थ्रू वो जाके रैम में जगह मांगता है कि मेरे को जगह दे दो, शरण दे दो, मुझे अपना प्रोग्राम रन करना है. ओके, सो विद इन दिस रैम, जो मेरी मेन मेमोरी है, इस मेन मेमोरी में दिस sample.exe will get the space to get the program run, similar to your games. Okay. Yes sir. Yes sir. Okay, now this is the final life cycle again. Initially we had the source code as .c file,
then we converted it into through the preprocessor it is converted into expanded source code. अगर वो 4 लाइन था stdio.h में suppose 100 लाइन्स थे, वो मिलके 104 लाइन का कोड बन जाएगा, तो वो .i वाला एक्सटेंशन बनेगा. आफ्टर दैट that .i वाला जो expanded code है it will be converted into assembly code which is having the .s extension file, and then it will be converted into obj file which is actually the machine code, वो 01 वाली values. All the multiple object files will be combined into a single executable file which will be called simple.exe, and then the loader will send it for the execution in the RAM. ठीक है, RAM में उसको जगह देंगे और उसको रन कर देंगे. That's it. समझ आ गया सारा प्रोसेस? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So now C character set. So these are the letters, digits, and the escape sequences. And we all know the letters. इसको मैं explain नहीं करूँगा. Digits का भी सबको पता है. Escape sequence क्या होता है? Backspace हमने आप लोगों को करवाया ये Hello World वाले प्रोग्राम में. Have you people run this thing? हेलो वर्ल्ड वाला सर हाँ. बैकस्लैश बीच में ये लिखा नहीं. होगा कोड में, नहीं No, करवाया? sir. ये No, sir. space No, sir. backspace सिंपल हेलो वर्ल्ड था. सर ये बी है. बैकस्लैश बी है. हाँ, सर बैकस्लैश एन और टी किया है सर. बैकस्लैश एन नहीं किया, टी भी अच्छा, नहीं किया. जैसे ये वाला ब्लैंक स्पेस है. ब्लैंक स्पेस का मतलब होता है कि जैसे नॉर्मल हमने स्पेस दे दी, अगर आप बैक स्पेस दोगे तो आप ऐसे लिखोगे. ठीक है, अगर आप स्पेस डालोगे वो तो हम नॉर्मल हेलो वर्ल्ड में स्पेस डाल ही देते हैं. यस सर. सो दिस इज ब्लैंक स्पेस. ब्लैंक स्पेस मतलब एक खाली स्पेस. अगर बैक स्पेस होगा, अगर यहाँ पे मैं एस्केप सीक्वेंस में बैक स्पेस भी डाल दूंगा तो दैट इज लाइक दिस. ठीक है, हॉरिजॉन्टल टैब क्या होता है वी ऑल नो. नॉर्मल हम जो बैक स्पेस टैब करते हैं तो इसमें मेरा वो 3 स्पेसिस का स्पेस दे देता है, जैसे हेलो और बीच में 3 स्पेसिस इकट्ठी और फिर वर्ल्ड. तो मतलब अगर मैं बैक स्पेस टी कर दूंगा बीच में तो वो 3 स्पेसिस रख देगा प्रिंटिंग के टाइम पे. सर ये तो हम खुद भी कर सकते हैं, स्पेस देखिए क्या जरूरत है इसकी. अभी बताता हूँ. हम सबको पता है कि जो मेरा कैरेक्टर होता है वो कैरेक्टर मेरा 1 बाइट का होता है. यस और नो? यस सर. तो अगर आप 3 स्पेसिस दोगे तो आप 3 बाइट ले लोगे, वर्सेस आप एक ऐसे करोगे तो उसमें सिर्फ आपको 1 बाइट में काम हो जाएगा. दिस इज योर 3 बाइट्स. अगर आप 3 स्पेसिस दे रहे हो तो जगह इसमें कम आ रही है ना. अगर बैकस्लैश टी लिखेंगे. हाँ, बैकस्लैश टी लिखेंगे. मैं अभी आपको एक बार रन भी करके दिखाता हूँ. गिव मी 1 सेकंड. आई विल screen share and I will show you the code of this thing. Just 1 second. सर वही बाइट वाली बात. हाँ, मैं बाइट वाली बात भी समझाता हूँ. 1 सेकंड दो बस. Okay, now switching my screen to the coding screen. So now if I do this, let's say पहले तो मुझे वो हैश इंक्लूड तो करना ही पड़ेगा. हैश इंक्लूड stdio.h. सर बैकस्लैश बी 1 बाइट का ही होता है. बैकस्लैश बी भी 1 बाइट का होता है. यस, जस्ट 1 सेकेंड. नाउ इंट मेन सिंगल कैरेक्टर हमेशा 1 बाइट का ही होगा. नाउ इफ आई से प्रिंट एफ हेलो बैकस्पेस, बैकस्लैश बी इज बैकस्पेस. ठीक है, वर्ल्ड. नाउ इफ आई run this will give me hello world. Why? Because backspace से जैसे हम नॉर्मल अपने लैपटॉप पे बैकस्पेस दबाते हैं तो एक कैरेक्टर उड़ जाता है, तो हेलो लिखने के बाद अगर आप बैकस्पेस डालोगे तो ओ चला जाएगा. वही चीज हो रही है यहाँ पे आउटपुट में. क्लियर है ये? तो मतलब कि वो फर्स्ट लेटर में से एक वर्ड उड़ाने के लिए यूज होएगा बैकस्लैश बी. जो बैकस्लैश बी है वो नॉर्मल अगर मैं टाइप कर रहा हूँ, सपोज मैंने यहाँ पे लिखा माय नेम इज साहिल, तो अगर मैं एक बैकस्पेस दबाऊंगा कीबोर्ड पे तो एल उड़ जाएगा ना. यस और नो? यस सर. तो वही चीज तो हो रही है हेलो के मतलब बाद. वही स्पेस उड़ा. हाँ, स्पेस नहीं उड़ा रहा, वो एक कैरेक्टर उड़ा रहा है. जो भी सर, उससे मैं भी उससे वही जस्ट कह रहा था, ठीक है, कैरेक्टर ठीक उड़ा है. देगा.
हाँ, तो आप लोग स्पेस बोल रहे हो, उसको करेक्टर बोलो फिर, ठीक है, टू बी वेरी प्रिसाइज। अगर मैं यहाँ पे बैक स्पेस टी कर दूंगा, नाउ दिस इज, इफ आई रन, इट विल ऐड 3 स्पेसेस हियर। समझ में आ रहा है? यस सर। टैब ना सर? हाँ, टैब। यस सर। अब देखो यहाँ पे इफ आई प्रिंट द साइज ऑफ का रिटर्न टाइप, लेट इट बी, मैं उसको अलग ही करता हूँ बिकॉज समटाइम्स इशू होता है। तो इंट साइज इक्वल टू साइज ऑफ दिस थिंग बैकस्पेस टी, ठीक है। अब देखते हैं मेरा साइज कितना आता है प्रिंट होने के बाद। इट इज गिविंग 4 बाइट्स। लेट्स सी। सर ये वाला दोबारा बता दो कैसे आया है? मैंने कुछ नहीं करा, मैंने बस एक साइज ऑफ देखा है कि मेरा साइज ऑफ करने पे अगर मैं साइज ऑफ के अंदर उस चीज को लिख देता हूँ कि मुझे किस चीज का साइज चाहिए, ठीक है। एक्चुअली मैंने क्या किया, मैंने ना उसको सीधा टैब दे दिया। मैं एक्चुअली इसको ऐसे करता हूँ, लेट्स से कैर ए इक्वल टू बैकस्पेस टी विच इज ए टैब। तो मैं अब ये वाला ए पास करता हूँ यहाँ पे। इफ आई पास ए, लेट मी प्रिंट द साइज। हाँ, ये चाहता था मैं। सो व्हाट आई एम सेइंग इज दिस बैकस्पेस टी जो मेरा टैब है, इट इज ए सिंगल कैरेक्टर विच आई एम सेविंग इट इन ए। समझ में आ रहा है? ये लाइन समझ में आ गई कि मैंने टैब को सेव कर दिया ए में, जो अपने आप में 3 स्पेसेस है, ठीक है सर। ओके। ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने उस कैर ए का साइज देखा कि जो मेरा ए है उसका साइज कितना है, उसको साइज को सेव कर लिया, इसमें प्रिंट करवा लिया, तो इन दी एंड मेरा 1 बाइट आ गया, ठीक है। एंड सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे 3 स्पेसिस कर दूं, मेरे को किसी ने अभी बोला था कि हम 3 स्पेसिस करके भी तो कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये मेरा एक सिंगल कैरेक्टर नहीं रहा, ये मल्टीपल स्पेसिस हो गए हैं, ठीक है। दिस इज नॉट ए सिंगल कैरेक्टर। तो मुझे यहाँ पे एक एरे का कंसेप्ट लेके आना पड़ेगा। इफ आई से एरे मे बी 3, मैंने A3 ले लिया। A3 से क्या हुआ, मैंने एक करेक्टर एरे ले लिया। करेक्टर एरे मतलब स्ट्रिंग, ठीक है, करेक्टर एरे का मतलब स्ट्रिंग होता है। एंड मैंने ये 3 स्पेसिस इसमें डाल दिए। नाउ इफ आई डू दिस साइज ऑफ ए, लेट्स सी द साइज, इट इज 3। दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग कि अगर मुझे मल्टीपल कैरेक्टर डालने पड़ेंगे, क्योंकि 3 स्पेसिस का मतलब मल्टीपल कैरेक्टर है, और मल्टीपल कैरेक्टर को हम ऐसे इनपुट करवाते हैं। सो देन माय साइज ऑफ दिस ए व्हिच इज ए एरे, कैरेक्टर एरे, इसको कैरेक्टर एरे बोलेंगे बिकॉज क्या होता है कि अगर हम किसी भी नंबर को ऐसे लिखते हैं, लेट्स से आई हैव रिटन A3। अब A3 का मतलब ये है कि विद इन ए आई हैव 3 एलिमेंट्स। इसका नाम ए है पर इसके पास 3 लोकेशंस हैं। किस टाइप की? कैर की। कैर का हर एक का एक एक बाइट का साइज है। दैट्स वाई जो मेरे 3 स्पेसेस आए थे, इनका साइज इज कमिंग आउट टू बी 3 बाइट्स। ठीक है सर। अगर समझ में आ एरे गया? ना लगाते तो फिर उसके स्पेस के लिए जगह नहीं होती, तो क्योंकि वो एरर तो एक ही बाइट। एरर ही आ यस जाता, एरर आ जाता, यस सर। ठीक है। एरर क्यों आता? क्योंकि अगर आप सिंगल कैरेक्टर इनपुट कर रहे हो, फिर आप मल्टीपल ऐसे धक्का नहीं कर सकते 3 चीजें डाल के, ठीक है। अगर आप देखो, सर हाँ जी, कोई भी वेरिएबल में कोई हम लोग को सेंटेंस को मीन स्टोर करना है तो ऐसे ही होगा क्या एरे बना के, कि वो कोई और भी तरीका होता है? यही होता है। इसको स्ट्रिंग बोलते हैं एक्चुअली। दिस कैरेक्टर एरे इज ए स्ट्रिंग, इसको इसी को स्ट्रिंग बोलते हैं। एरे के अंदर इनपुट करना होगा ना कितना हम लोग कैरेक्टर्स डाल रहे हैं। हाँ, उसको पहले साइज देना होगा। एरे का एक प्रॉपर्टी होता है, इस पे आएंगे जब एरे पढ़ाया जाएगा। बट फॉर नाउ मैं सिर्फ अभी के लिए आपको इतना बता सकता हूँ कि जो भी मेरा यहाँ पे मैं सेंटेंस लिखूंगा, उसको मैं एक एज ए स्ट्रिंग इनपुट ले रहा हूँ, जिसका मैंने साइज पहले बता दिया कि मैं अपनी तरफ से 20 की लोकेशन अलॉट कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये वाली चीज में चाहे कम कैरेक्टर्स हैं, इसमें कितने हैं, 2 4 6 और 7 13 और 3 स्पेसेस 16। चाहे मैं 16 स्पेसेस यूज कर रहा हूँ आउट ऑफ 20, 4 मेरे खाली हैं, पर उसको 17 है। 17 है। चलो जितने भी हैं तो कुछ तो खाली है ना 20 में से। तो चाहे कुछ खाली रह गए, लेकिन उसने अपने आप को एरे, मतलब जब उसको रैम में जगह मिली, उसने अपने आप को 20 बाइट एलोकेट करवा लिए, ठीक है। सर अगर अपन 20 बाइट की स्पेस दी, अगर यहाँ पे पर ज्यादा लिख दे फिर कोड नहीं रन करेगा? एरर आ जाएगा अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, ज्यादा हो गया, ठीक है, 20 से तो ज्यादा ही है, रन करा,
तो यहाँ पे एरर आ गया। क्यों? क्योंकि ये कह रहा है कि यार 20 का कर रहे हो आप, करेक्टर इज टू लॉन्ग, ठीक है सर। एरे ऑफ करेक्टर इज टू लॉन्ग। ठीक है, सर हाँ जी। सर बैकस्लैश टी का तो समझ आ गया कि स्पेस कम यूज हुई, और बैकस्लैश बी में सर अगर पहली हेल वर्ड लिख देते। तो पता, बस ये है कि आपको बताया जा रहा है कि ये भी होता है। ठीक है, अब यूज करो ना करो वो तो मैंने भी आज तक कभी यूज नहीं करा, बस पता होना चाहिए कि बैक स्पेस नाम की एक ऐसी चीज होती है। ओके ठीक है, बैक एंड पे अगर मैं अपने कीबोर्ड में बैक स्पेस दबा रहा हूँ तो काम वही हो रहा है जो आपको बताया है। ठीक है, नाउ लेट्स कम बैक टू द स्लाइड्स, टेकिंग बैक सर आपने जो ये कैर स्टेटमेंट लिखी थी, इसकी वैल्यू सिंगल कोट्स में नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। अगर आप ऐसे करो, लाइक आपने डबल कोट रखी सुनो, अगर आप ये लिखोगे कैर ए माय नेम इज समथिंग, ठीक है, ऐसे कुछ करके मैंने बड़ा लिख दिया, तो यार कैर की ना अगर आप सिंगल कैरेक्टर ले रहे हो, क्योंकि मैंने अब यहाँ पे वो एरो तो नहीं लिया, मैंने बहुत बड़ी उसको वैल्यू तो नहीं दी 10 20 30 ऐसे कुछ नहीं लिखा, तो वो बाय डिफॉल्ट एक ही कैरेक्टर एक्सपेक्ट करेगा राइट हैंड साइड पे, एरर आ जाएगा, आप करके देख लेना। ठीक है, ऐसे कुछ एक बड़ा सा नीचे एरर आ जाएगा, नॉट दिस एरर बट तो सम अदर एरर। हाँ जी, क्या कह रहे हो? अगर हमने स्ट्रिंग कीवर्ड यूज किया तो चल जाएगा ना? वो आप करके देख लेना, जब आएगा मैं उसके ऊपर करूंगा चर्चा। अभी के लिए लेट्स कम बैक टू द स्लाइड्स, काफी कम पढ़ाई हुई है आज। सो दीज आर द करेक्टर सेट्स। पहले स्पेशल जैसे ये था लेटर डिजिट इसमें सर, यस सर देव C++ में तो वो 8 स्पेसेस छोड़ रहा है सर। कंपाइलर डिपेंडेंट है, मैंने बहुत पहले ये बताया था। आई थिंक आई टोल्ड दीज थिंग्स इन लैब। मैं लैब भी लेता हूँ, आई एम टीचिंग COE ग्रुप्स, 4 ग्रुप है मेरे पास, एंड इन लैब व्हेन आई इम्प्लीमेंटेड दीज थिंग्स आई टोल्ड इन द लैब टू देम आल्सो, एंड टुडे आई एम टेलिंग यू, ये चीज़ें कंपाइलर डिपेंडेंट होती हैं। ऑनलाइन कंपाइलर पे अगर 3 स्पेसेस हैं, इट डजंट मीन कि हर जगह 3 ही होगा। जैसे डेव C++ पे अभी एक बच्चे ने बोला कि 8 हैं स्पेसेस, इट मे बी 5, इट मे बी 4, इट मे बी 8, इट मे बी 3, वो कंपाइलर के ऊपर डिपेंड करता है। इट इज ऑलवेज मोर देन 1, टैब का मतलब बस ये है। ठीक है, ओके, थैंक यू सर। okay, so coming to this character set, special characters, these are some of the special characters in C, comma, डॉट, सेमीकोलन, कॉलन, एपोस्ट्रॉफी। सो जो भी है इनका उन्होंने ऑलरेडी नाम रखा हुआ है, जो कि हमें काफ़ी कुछ पता भी है। ये परसेंट है, ब्रेसेस है, हमें सब पता है। ठीक है, इनमें से वी अंडरस्टैंड के किसको पैरेंथेसिस कहना है, ये चीज़ बस थोड़ा सा ध्यान से देख लेते हैं। व्हेन वी यूज टेक्निकल टर्म्स, हमें यहाँ पे ये चीज़ थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकती है। व्हेन वी यूज दीज ब्रैकेट्स विद द फंक्शन, अगर कोई भी फंक्शन है जैसे मेन फंक्शन है या printf फंक्शन है, तो वहाँ पे we use these round brackets and they are called parentheses. ठीक है, if you are told to make a function you will have to use a parentheses only. You cannot say that you are putting some brackets or braces. So bracket का मतलब है square brackets, braces का मतलब है curly brackets, parentheses is this round bracket. So you have to use the terms very carefully when you are writing, especially you are writing an exam. Okay, so moving ahead now. So each character is assigned a unique numeric value and these values are put together and they are called character codes. I think a sky code का भी आएगा अभी थोड़ा सा आने वाला है. Now these are the uses of these delimiters. When we use this colon, it means I want to use it for a label. So we will study this when we will go through the switch statement. Switch जब पढ़ेंगे, ठीक है, जैसे if else आएगा आगे जाके, ऐसे switch भी आएगा। तो switch statement में cases होते हैं, case 1 case 2, तो वहाँ पे हम colon डाल देते होते हैं, case 1 case 2। तो जो भी मैंने काम करवाना है तो मैं उसमें कुछ ब्रैकेट में अपना काम करवा देता हूँ। एंड दिस केस 1 मीन्स दैट विद दिस कॉलन, ये निशानी है कि मेरा 1 एक लेबल है, ऐसे 2 मेरा एक लेबल है। तो ये स्विच स्टेटमेंट का काम है, इस पे अभी करेंगे चर्चा जब स्विच स्टेटमेंट पे आएंगे। सेमीकोलन मीन्स दैट एंड ऑफ स्टेटमेंट, टर्मिनेशन ऑफ स्टेटमेंट। पैरेंथेसिस यूज इन एक्सप्रेशन एंड फंक्शन। स्क्वायर ब्रैकेट्स इज फॉर एरे, मैंने अभी आपको एरे का एग्जांपल दिया था। लेट्स से आई एम राइटिंग A10, so I can give 3 spaces. ठीक है, तो this will be considered as a string which is a character array in this case. So ये array में हमेशा ऐसे वाले square bracket ही use होंगे and उसका नाम मतलब square bracket ही है वैसे तो। curly braces हैं जो
These braces will be helpful in knowing the scope of the statement. So when I write main function, we always start and end it using these curly braces. So it is braces, right? And it is for the scope. इसको scope बोलते हैं कि कहाँ से लेके कहाँ तक उसका area है मेरे मेन फंक्शन का. हैश का होता है प्रीप्रोसेसर डायरेक्टिव. वी हैव ऑलरेडी सीन दिस. हैश डिफाइन, हैश इंक्लूड, तो ये प्रीप्रोसेसर डायरेक्टिव होता है. Similarly, comma is a variable separator. We have used this already. So int a, comma b, comma c ऐसे कुछ करोगे तो ये variable separator है. ठीक है. The name is understandable and intuitive. So these are the keywords. आप इन नामों को as it is variable names नहीं रख सकते. ठीक है. इन सी प्रोग्रामिंग अगर आपने कोई वेरिएबल रखना है, जैसे हम ABC रखते हैं, तो आप ऐसे वाले वर्ड्स जो नीचे सारी ये पूरे लिस्ट है, these list words have their predefined meaning in C programming. We have already seen size of, मैंने अभी थोड़ा सा दिखाया था आपको. Switch के बारे में थोड़ा सा आइडिया दिया है कि उसमें हमने case 1 case 2 करना होता है. Void पता है हमें, int हमें पता है, int main void main हमने सुना हुआ है. तो इन सब के predefined meanings हैं. ठीक है. And all this list has predefined meanings. These are all the keywords. Keywords का मतलब होता है that it has a reserved meaning in this programming. Okay, so you cannot use them as a variable name because they are predefined. So there are some identifiers in C programming. Identifiers का मतलब होता है, okay, so it is a name used to identify the variable. So whenever, देखो आइडेंटिफायर का नाम से पता चल रहा है कि कुछ आइडेंटिफाई करना है. किसको करना है? वो वेरिएबल भी हो सकता है, फंक्शन भी हो सकता है, कोई और फंक्शन भी हो सकता है जो हमने खुद बनाया. लेट्स से मुझे प्राइम नंबर का एक फंक्शन बनाना है कि मुझे कुछ नंबर पास करना है. यहाँ पे कोई नंबर आएगा, सपोज n कोई आया, और उसको चेक करके भेजना है कि ये प्राइम है कि नहीं, येस और नो. ठीक है. तो मेरा प्राइम इज यूजर डिफाइंड फंक्शन. मैं वहां पे प्राइम को एक यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाऊंगा जो मेरा खुद का होगा लिखा हुआ, वो प्रीडिफाइंड नहीं है मेन या प्रिंटफ की तरह. ठीक है. सो ऑल दीज थिंग्स, all the names in this case are identifiers in our C programming. Now an identifier starts with the letter A to Z. A to Z small भी हो सकता है, underscore भी आ सकता है, followed by a 0 or more letters. So when we are writing any name of a variable, और कोई भी आप नाम रख रहे हो, बस एक छोटा सा रूल होता है इसमें कि आप अंडरस्कोर से भी लिख सकते हो. कोई भी नाम लिखना है तो अंडरस्कोर, जैसे नेम कुछ भी ऐसे करके नाम लिख लो, या फिर नेम 10, ये भी नाम हो सकता है, नेम 1, दिस कैन ऑल्सो बी द नेम. लेकिन अब अगर आप बोलो कि आप ऐसे 1 अंडरस्कोर नेम, अगर आप ये ऐसा नाम रखना चाहोगे, दिस कैन नॉट हैपन. सिर्फ एक यही आपके पास रूल है दैट यू शुड नॉट स्टार्ट द नेम विद ए नंबर. ये अभी आगे मींस आएगा. जो यूजर डिफाइंड चीजें होती हैं उसको आइडेंटिफायर्स बोलते हैं, सिंपल ये कह सकते हैं. यूजर डिफाइंड चीजें होती हैं, चाहे वो वेरिएबल है, फंक्शन है, सिर्फ उनके Yes. नाम, सिर्फ उनके Okay. नाम. ठीक है. जो भी ठीक हमने है. उनका नाम रखना उसको हम आइडेंटिफायर बोलेंगे. सो सी इज ए केस सेंसिटिव. अगर मैंने यहाँ पे लिखा int a, a, these are two different variables. ठीक है. इसका मतलब ये है केस सेंसिटिव का. Okay, so now moving to the next slide. Rules for forming the identifier names. So do we still have time? Yes sir, 8 minutes हैं अभी. हाँ, अभी तो 8-9 minutes पड़े हैं. Okay. Rules for forming the identifier names. So let's go through the rules. It cannot include any special character. आप नाम के अंदर ये सब चीजें नहीं डाल सकते, except underscore. underscore डाल सकते हो. ठीक है. जैसे name underscore 1. So this can be a name of an integer. ठीक है. तो underscore आ जाएगा पर कोई और special character नहीं आएगा. अगर इसमें से कुछ भी डाला तो error आएगा. There cannot be two successive underscores. So you cannot use this thing name underscore underscore 1. तो ये गलत है, एक ही आएगा. ठीक है. मतलब एक टाइम पे एक आएगा. आप ये कर सकते हो कि आपने लिख दिया name underscore 1 underscore 2, तो ये ठीक है. ठीक है. बट इफ यू से कि आप डबल अंडरस्कोर डाल दोगे तो वो गलत है. Keywords cannot be used as identifiers. ये हमने देख लिया कि अगर मेरा already I know that void का पीछे कुछ meaning already defined है, int का अपना खुद का नाम है, ठीक है, predefined है, तो I cannot write int. So this is wrong because int cannot be a variable name. Case of alphabetic characters is significant. So it means that a है या छोटा है, ठीक है, बड़ा छोटा, capital or small. That's why case, lower case, upper case. Okay.
सो ये चीज़ों का ध्यान रखना है। एंड इट कैन बी ऑफ एनी रीजनेबल लेंथ, ठीक है। कुछ जितना मर्जी आप बड़ा नाम रख लो, चाहे 50 करेक्टर का रख लो वेरिएबल का नाम, आपको बार बार टाइप करना पड़ेगा। इट कैन बी मेनली अप टू 63 कैरेक्टर्स लॉन्ग, so I gave you example of 50. It means I mean we have a limit of 63. इतना बड़ा को नाम रखता नहीं है because just for the sake of typing again and again we will not keep a very long name, right? Underscore can be used to separate the parts of the name of the identifier. We have already discussed this, that you can put multiple underscores. एक चीज यहाँ पे पीछे मिसिंग है रूल्स में, यहाँ पे इट इज नॉट रिटन कि आप नंबर्स के साथ शुरू नहीं कर सकते। I know this for sure that you cannot put a number as a first character of the name. आप name 1 तो लिख सकते हो, आप 1 name नहीं लिख सकते, ठीक है, ये नहीं कर सकते irrespective of यहाँ पे लिखा है कि नहीं, just warning you कि ये गलती मत करना कोडिंग में। After that, data types. So there are multiple data types in C and we have already seen some of them, int, float, इन सब की तो हम फर्स्ट लेक्चर से बात करते आ रहे हैं, ठीक है। And we will see और क्या क्या है। So data types in C refer to an extensive system used for the declaring variables और functions. आप किसी का भी देखो, हमने int main भी किया था, ठीक है, और हमने int a भी किया था, ये सेमीकोलन यहाँ पे नहीं आएगा। तो आप एक वेरिएबल का भी डेटा टाइप बता सकते हो, आप एक फंक्शन का भी डेटा टाइप बता सकते हो। फंक्शन का डेटा टाइप मतलब उसका रिटर्न टाइप क्या होगा, रिटर्न 0, रिटर्न, जैसे हमने रिटर्न 0 किया था मेन के केस में। सिमिलरली यू कैन मेक ए फंक्शन, लेट्स से इंट सम, एंड यू कैन मे बी रिटर्न 5+2, एक ऐसा करके फंक्शन बना सकते हो छोटा सा। इसका रिटर्न टाइप इंटीजर है, इसका मतलब ये हर बार एक इंटीजर वापस करेगा, जो कि मेरा 5+2 इज 7 ओनली, तो ये 7 रिटर्न करेगा जहां से भी उसको कॉल आएगी, जहां से भी उसको बुलाया जाएगा कि मेरे को कैलकुलेट करके दे। So used for declaring variables or functions of different types. The type of a variable determines how much space it occupies in storage and how the bit pattern stored is interpreted. So C supports a number of qualifiers that can be applied to the basic data types. इसमें अब क्या है सुनो, मैंने आपको एक बार बताया था कि एक साइंड इंटीजर्स होते हैं, एक अनसाइंड होते हैं, यस और नो, हमने इसकी चर्चा करी हुई है, साइंड एंड अनसाइंड वेरिएबल्स, ठीक है। साइंड वाले में आई टोल्ड यू, अगर अनसाइंड में 0 to 15 है तो साइंड वाले में वही चीज -8 to 7 होगी, ये चीज हमने डिस्कस करी हुई है। सो सिमिलर टू अनसाइंड एंड साइंड देयर इज शॉर्ट एंड लॉन्ग आल्सो, ठीक है। अब ये शॉर्ट लॉन्ग क्या है, इसके ऊपर देखते हैं कि क्या क्या लिखा हुआ है अभी आगे जाके। टाइप मॉडिफायर, yeah, so there are 3 types of data types mainly: primitive, derived and user defined. देखो प्रिमिटिव का मतलब है जो ऑलरेडी हम पहले दिन से यूज करते आ रहे हैं, कैर, इंट, फ्लोट, डबल वॉइड, तो ये सब तो हमें एक इंट्यूटिवली समझ में आ रहा है। सो आई डिस्कस्ड अ बिट अबाउट एरेज टुडे, मैंने थोड़ा सा एरे का हल्का सा आपको दिखाया कि एरे हमने कैसे यूज किया। एंड एरे कैन बी फॉर नंबर्स आल्सो, मैंने अभी आपको एक करेक्टर एरे दिखाया था, ठीक है। करेक्टर एरे में हम अपना नाम लिख सकते हैं, आप भी अपना नाम लिख सकते हो, ठीक है। तो दिस इज ए करेक्टर एरे ऑफ साइज 10 बाइट्स, तो ये वाला नाम जाके रैम में सेव होगा एट द प्लेस ऑफ ए, जहाँ पे उसको जगह एलोकेट होगी, और वो नाम लिखेगा जरूर बट साइज उसका 10 बाइट्स ही रहेगा, क्योंकि करेक्टर का साइज होता है 1 बाइट। तो अगर 8 10 है मतलब 10 वैल्यूज का है एरे। सिमिलरली एक पॉइंटर होता है, एक फंक्शन होता है। पॉइंटर का मतलब कह लो तुम, सपोज अब मैंने ए को कहीं पे सेव किया, ठीक है, रैम में, एंड उसका एड्रेस था 1000। जो ये एड्रेस है इसको अगर हमने कहीं पे सेव करना है, मुझे पता है कि अगर मुझे a = 10 सेव करना है तो मैं a = 10 लिख के अपने कोड में लिख सकता हूं, ठीक है। सिमिलरली इफ आई वांट टू सेव दिस एड्रेस ऑफ a, तो मैं उसको ऐसे लिख सकता हूं, int star b = एड्रेस ऑफ a। तो ये स्टार बी क्या बला है, इसका क्या मतलब है, स्टार का मतलब होता है पॉइंटर, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो, आप बी में ए का एड्रेस सेव कर रहे हो जो कि 1000 है। हल्का सा सिर्फ आइडिया देने के लिए लिखा है, डरना नहीं है, ये चीज आगे जाके दोबारा आएगी, बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, पॉइंटर इज ए चैप्टर इन इटसेल्फ। तो ये जो आपको मैंने अभी यहाँ पे बताए हैं कि हमारे ये 3 चीजें हैं, दीज आर डिराइव्ड डेटा टाइप्स, ऑल ऑफ देम आर चैप्टर्स इन इटसेल्फ। एरे एक अपना अलग चैप्टर है, पॉइंटर अलग चैप्टर है, फंक्शन अलग चैप्टर है। सिमिलरली यूजर डिफाइंड डेटा टाइप भी होते हैं,
स्ट्रक्चर्स, यूनियंस एंड इनम, ठीक है, इनम होता है एक, स्ट्रक्चर होता है एक, यूनियन होता है, तो दीज आर अगेन डिफरेंट चैप्टर. स्ट्रक्चर एंड यूनियन इज वन चैप्टर. I think enum is also in the same chapter. So we will discuss this thing when the time will be right and we will reach that point. So now discussing the primitive data types in C. So we have already seen earlier कि मेरा character होता है 1 byte का. 1 byte में होते हैं मेरे 8 bits और 8 बिट्स के हिसाब से जो मेरे मैक्सिमम नंबर आ सकते हैं इसमें आ सकते हैं 0 से लेके 255 तक. बट अगर वो अब इस चीज में जो रेंज है इसमें बाय डिफॉल्ट हम नेगेटिव वाला भी केस लेके चलेंगे. सो दैट 255 विल गेट डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, 128 टू माइनस 128 टू प्लस 127. तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है. ठीक है, अब इसका इजी तरीका आपको बताया था हूँ. यहाँ पे आपके सामने साइज लिखा हुआ है बाइट्स का. ठीक है, ये वाली चीज अपने आप याद हो जाएगी अगर आपको अभी जो मैं बताने लगा हूं अगर वो टेक्निक याद रह जाए. सो व्हेन आई से 1 बाइट इट मींस देयर आर 8 बिट्स एंड फॉर्मूला सेज जो यहाँ पे नंबर लिखना है रेंज में, इट इज डिराइव्ड एज माइनस ऑफ 2 रेज टू पावर वट एवर माई साइजेस. साइज को मैं सपोज कहता हूँ n, तो n माइनस 1 से लेके 2 रेज टू पावर n माइनस 1 माइनस 1 अलग से करना है. So if I use this thing in the first case, तो मेरा आया minus 2 raised power 7 to 2 raised power 7 minus 1. तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे you will get this number of minus 128 to 127. Similarly you can do it for this case n also. बिट्स का नहीं होगा आपने मतलब वो? हाँ, yes, n will be bits. तो यहाँ पे bytes को आप ऐसे कर लो. तो Small सेकंड n केस equal to में यहाँ 31 कैसे आ गया ऊपर -2 के पास? मैंने क्या बोला था कि वो दो हिस्सों में बढ़ जाता है. ठीक है, नहीं नहीं हाफ. वो तो सर समझ गया. अरे सुन यहाँ तो पे लो, अरे सुन तो लो भाई. मैंने बोला कि मेरा 2 रेज़ पर 8 है तो माइनस 2 रेज़ पर 7 से लेके 2 रेज़ पर 7 माइनस 1 तक होगा. यस और नो? फर्स्ट केस में. यस सर. तो इस केस में क्योंकि 4 बाइट्स है, 4 बाइट्स का मतलब 32 बिट्स हैं. यस सर. ठीक है, ठीक है 30. सर. तो इस केस में एक कम. हाँ सर आगे सर. ठीक है सर. लॉजिक सिंपल है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा बट अगर आप ऐसे इमेजिन करो 2 रेज़ पर 8 इज इक्वल टू कितना होता है 256. बट इफ आई डिवाइडेड बाय 2 2 रेज़ पर 7 विल बी 128. ठीक है, तो एक नंबर कम करोगे मेरी रेंज आधी हो जाएगी. यस सर. वही चीज है. तो यहाँ पे माइनस 2 रेज़ पर 31 टू प्लस 2 रेज़ पर 31 और माइनस 1 आएगा यहाँ पे. छोटी सी गलती है यहाँ पे. Similarly, you can solve it for float and this double. तो जो भी आपके सामने रेंज है सामने है. अनसाइंड वाले केस में हमें माइनस की टेंशन नहीं लेनी, सिर्फ पॉजिटिव नंबर आएंगे. तो ये वाला नहीं, ये वाला. सो अनसाइंड इंट इज ऑफ 4 बाइट्स. तो इस केस में 0 से लेके 2 रेज़ पर 32 माइनस 1. एंड सिमिलरली अनसाइंड का 1 बाइट है, इट इज 0 टू 2 रेज़ पर 8 माइनस 1, तभी यहाँ पे 255 लिखा है. तो इस स्लाइड में बाय डिफॉल्ट एक छोटी छोटी गलतियां हैं एक दो. तो यहाँ पे -1 आएगा. ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे -1 आएगा, सिमिलरली यहाँ पे -1 आएगा. यहाँ पे ऑलरेडी -1 हो रखा है. तो इस चीज का ध्यान रखना है, थोड़ा सा खुद भी दिमाग लगाना है. ठीक है, समझ में आ गया आइडिया क्या है? यस सर. ओके, सो सिमिलरली यू कैन डू इट फॉर दिस थिंग. 16 बाइट्स है तो 16 इंटू 8 करोगे. ठीक है, कितना आ जाएगा 128. ठीक है, तो 128 में से it will be like this, long double है तो it will be minus 2 raised to power 127 to 2 raised to power 127 minus 1 हो जाएगा. यस सर. Okay, so time is up. Let's end the session. We will meet in the next lecture. Thank you. Thank you, Okay, sir. Thank you, sir.